In an AC circuit, we have various type of the elements like electric cell, connecting wires, electric bulb, variable resistance, keys, etc. Or you can say that these are the supporting. To form any electric circuit, we mandatory need these elements, but there are some special type of the elements which are used in the electric circuit for some special purpose like resistance, capacitor, inductor. So now we are going to discuss one by one, first resistance, then capacitor, and then inductor. That what happens when a pure resistor is connected to an AC circuit, what happens when a pure inductor is connected into an AC circuit, and what happens when we connect a pure capacitor in an AC circuit. So today we are going to discuss about the behavior of the resistance in an AC circuit, and let's start with the resistance. What happens when a pure resistance is connected in AC circuit? You know that this is the symbol of the resistance, and this resistance is connected in an AC circuit. This is the AC source, and we complete the circuit, and this is a key with the help of a key. Okay. As this source is of AC, so let applied voltage is V is equal to V naught sine omega t. Okay. So we apply V is equal to V naught sine omega t, and alternating current, you know that an alternating voltage, and this voltage can be represented like this, and you know that this is the sinusoidal variation. Sinusoidal variation mean साइन फंक्शन जो होता है वो इस प्रकार से होता है, दैट्स वाई वी कॉल इट साइनसोडियल वेरिएशन. यहाँ पे ये इसका पीक वैल्यू है, दिस इज द पीक वैल्यू, वी कैन कॉल इट वी नॉट, एंड दिस इज द पीक वैल्यू इन नेगेटिव, दैट इज माइनस वी नॉट. ओके, लेट्स स्टार्ट. लेट्स कंसिडर AC voltage applied is V is equal to V naught sin omega t. यहां पे आपको एक बात पे और ध्यान देना है, और वो क्या है, वी आर कॉलिंग इट AC voltage and it is bit confusing and we can say that logically it is wrong because AC mean alternating current. AC mean alternating current. So here it mean alternating current voltage, जो कि गलत है. और जब हम करंट की बात करते हैं तो भी हम बोलते हैं AC करंट. AC करंट मीन अल्टरनेटिंग करंट, तो ये भी गलत है. बट है क्या, ये जो AC है अल्टरनेटिंग, ये इतना ज्यादा चलन में शब्द आ गया है, और अब AC का मतलब जो है हम किसके संदर्भ में लेते हैं, इस AC का मतलब हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि ये वेरिंग करंट है. इट इज वेरिंग, इट इज नॉट कांस्टेंट. ओके, सो आपको यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि AC करंट वोल्टेज. नो, इट इज नॉट AC करंट वोल्टेज, इट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और सिंपली यू कैन कॉल इट अल्टरनेटिंग वोल्टेज. तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को आप AV लिखने की गलती मत करना. फिर जैसे अल्टरनेटिंग करंट को हम AC लिख देते हैं, तो उसी प्रकार से डोंट राइट अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज AV, write full alternating voltage or write AC voltage. Okay, V is equal to V naught sin omega t, where omega is, what is omega? It is angular frequency and T is the time. Okay, ठीक है. अब V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी अगर आप यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो यू नो दैट व्हेन वी अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर, रजिस्टर, किसी की भी अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, देन देयर इज सम करंट. ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट डेवलप. सो यहाँ पे क्या होगा, करंट होने वाला है इसके अंदर कितना, I, और ओम्स लॉ से I जो है वो किसके बराबर होगा, I इज इक्वल टू, इसका जो I हो किसके बराबर होगा, V डिवाइडेड बाई R. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R. और ये इसका V कितना है,
इसका v, इसको ये पोटेंशियल कहाँ से मिला, इसको यहाँ से मिला, ये v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I is equal to V divided by R, that is equal to V can be written as V naught sin omega t and divided by R. What is V naught? V naught is the peak voltage. This is the V naught. ये है V naught. V naught divided by R. Ohm's law से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा ये. So from here we can write that I is equal to I naught sin omega t. I is equal to I naught sin omega t. From here we observe that phase of current is sin omega t. जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन कोस टेंजेंट, उसका जो आर्गुमेंट होता है, जहां पे जो एंगल की जगह हम लिखते हैं, दैट इज नोन एज फेज. आपने क्लास 11th में ये अच्छे से पढ़ा था कि फेज क्या होता है ना. तो ये इसके साथ ही है, ये क्या है, फेज है. तो करंट का फेज यहां पे कितना है, ओमेगा टी. एंड व्हाट इज द फेज ऑफ वोल्टेज, दैट इज आल्सो ओमेगा टी. सो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, कहीं आप नोट्स में भी लिख डालो इसको. सो हम यहां से क्या देखते हैं, फेज ऑफ वोल्टेज इज ओमेगा टी एंड फेज ऑफ करंट इज आल्सो ओमेगा टी. सो इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट मीन इन सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली. सो इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट current and voltage both are in same phase, mean this is the current, so this is the voltage. So from here we can write that thus current and voltage are in same phase. Okay, अब हम इसका ये फेजर डायग्राम बनाते हैं, इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं. और फेजर क्या होता है थोड़ी देर बाद में आपको बताएंगे, पहले समझ लो इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं. इस फेजर डायग्राम में ये तो आपके पास किसकी वैल्यू होगी, वोल्टेज की. करंट की क्या हो जाएगी, करंट भी तो यही है ना, करंट इज आल्सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. करंट इज आल्सो साइनसोइडल फंक्शन एंड फेज ऑफ बोथ इज सेम. इट मीन व्हेन वोल्टेज इज जीरो देन करंट इज आल्सो जीरो. व्हेन वोल्टेज इज एट इट्स पीक वैल्यू देन करंट इज आल्सो इट्स पीक वैल्यू. अगेन व्हेन वोल्टेज इज जीरो देन करंट इज आल्सो जीरो. इट मीन करंट एंड वोल्टेज वेरी सिमुलटेनियसली. तो यहां से सिमुलटेनियसली वेरी कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा. ये जो हम रेड लाइन बना रहे हैं, रेड वाला, ये किसके लिए है, करंट के लिए है. ओके, यहां से ये हम देखेंगे, ये पीक वैल्यू किसकी है, करंट के लिए है. दिस इज द फेजर ऑफ द करंट, यहां से लेकर यहां तक. और फेजर ऑफ द वोल्टेज इज दिस. मैंने इसके अंदर ही बना दिया, आप इसको बाहर ऐसे भी बना सकते थे, आप इसको ऐसे बना सकते हो. आई नोट एंड दिस इज वी नोट. अंदर मत बनाना, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा. ओके, इसको अंदर वाले को हम हटा देते हैं, ये हो जाएगा. तो ये तो फेजर वेरिएशन है, फेजर डायग्राम है करंट का और वोल्टेज का, किसमें, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में. और ये हमने इसको फेजर रिप्रेजेंट कर दिया. अब फेजर का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाद में फेजर का हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे. फेजर क्या होता है, फेजर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, और जो क्या करता है, स्केलर को वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करता है. फेजर क्या करता है, स्केलर को वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करता है. अब आपको पता है करंट और वोल्टेज स्केलर हैं, इनको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट जो करता है उसको हम फेजर बोलते हैं. और फेजर जो होता है वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलता है और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चलता है. एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमेगा. यहाँ पे इसके जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जैसे ओमेगा है, क्या है, ओमेगा है, ये ओमेगा एसी की एंगुलर फ्रिक्वेंसी है. तो यहाँ पे इसकी जो एंगुलर स्पीड होगी वो ओमेगा होगी, बिकॉज यू नो दैट ओमेगा इज एंगुलर स्पीड आल्सो. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. It is the angular frequency, angular speed, and 1 by t is equal to frequency. If we write it 2 pi nu, then it is angular
फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर स्पीड है और ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब सर्कल में होता है तो दोनों सेम चीज़ हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को सर्किट में जब कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में आते हैं। यहाँ से हम एक बात और भी देखते हैं, ये जो वोल्टेज है ये वेरिंग है। वेरिंग है मतलब कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। एंड ड्यू टू दिस वेरिएशन इन द वोल्टेज रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज इट्स बिहेवियर। और यहाँ से हम एक बात और भी देखेंगे। अब आपको पता है जैसे वोल्टेज होती है, पावर जो होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पावर P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। बाद में हम इसका एक डेरिवेशन भी करने वाले हैं, लेकिन पहले आपको मैं सिर्फ उसका हिंट देता हूँ। P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, इसका मतलब पावर होगा वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होगा। तो हम देखते हैं यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव है, यहाँ भी वोल्टेज पॉजिटिव है, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ जो करंट है वो नेगेटिव है और यहाँ वोल्टेज भी क्या है, नेगेटिव। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो फिर से क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इसमें जो पावर आने वाली है वो पॉजिटिव आएगी और पावर का कंजम्पशन रहने वाला है वो मैक्सिमम होगा। पावर का अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं तो पावर का फेजर डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं, इसी में बना देता हूँ। पावर का फेजर डायग्राम इसमें बनाएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा तो इससे ज़्यादा ही आएगा, ऐसे आएगा। अभी आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं एक पूरा आर्टिकल करूंगा तब बना लेना। सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि जब मैं बताऊं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, दोनों माइनस में है, और इसका प्रोडक्ट करूंगा तो प्लस में आएगा, तो इसका फिर से प्लस में आ जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा। तो ये वेरिएशन किसका रहने वाला है, पावर का रहने वाला है, जो डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, मतलब हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन रहने वाला है वो ये रहने वाला है, पावर कंजम्पशन इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ये तो हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने क्या किया, करंट और वोल्टेज का वेरिएशन देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे पावर कंजम्पशन इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो हम यहाँ पे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आपको अंदाजा लग जाएगा कि पावर कंजम्पशन रेजिस्टिव सर्किट में जो रहने वाला है वो मैक्सिमम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा तो ऑलवेज किस में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट हाफ साइकिल में भी पावर कंज्यूम करता है, ये सेकंड हाफ साइकिल में भी पावर कंज्यूम करता है, ओवरऑल ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है। ओके, तो ये तो था हमारे पास किसके बारे में, एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, और उसका हमने फेज वेरिएशन निकाला। तो आप यहाँ से अलग से भी लिख देंगे, हमने क्या लिखा, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, इनका जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ओके।